رمضان کے ان لمحات اور اوقات میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میں نماز کے دوران یا نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھ رہا ہوں، کون سا کلام قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہوں نماز کے دوران۔ جب یہ طے ہوا کہ رمضان سارا ملنے کا مہینہ اور رمضان سارا اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ، پھر کیوں نہ اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ دنیا آخرت کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ ان میں ایک خزانہ سورت علم نشرہ اور علم تری کیف کا ہے۔ علم نشرہ اور علم تری کیف کا ہے۔ زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، نیکی میں برکت اور برکت میں برکت، یہ دو صورتیں وہ ان سب چیزوں کا خزانہ ہے۔ عمر میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت اور برکت میں برکت۔ یہ برکت میں برکت کیا ہے؟ باقی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یہ چیز ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ برکت میں برکت کیا ہے؟ برکت میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آج اللہ جل شانہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نعمتیں کل بھی میرے ساتھ رہیں، پھر کل کے بعد میری نسلوں میں بھی میرے ساتھ رہیں، پھر پرسوں کے بعد میری نسل در نسل رہیں۔ یہ ہے برکت میں برکت۔ جس کو کتابوں میں جو لفظ آیا ہے، اے اللہ میری برکت میں مدد فرما، میری برکت میں مدد فرما، کتابوں میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے برکت میں مدد فرما۔ سورت علم نشرہ اور سورت علم تری کیف، علم نشرہ پہلی رکعت میں، علم تری کیف دوسری رکعت میں، اور آخری 6 صورتیں ان کا اپنی نمازوں میں اہتمام کریں۔ آخری 6 صورتیں حادثوں سے بچائیں گی، جادو اثرات بندشوں سے بچائیں گے، نظر بد حسد سے بچائیں گے، لا علاج بیماریاں وباؤں سے بچائیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں لفظ جادو کا جب آتا ہے تو ایک خیال آتا ہے کہ کیا ہر بندہ جادو کرنے بیٹھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ میرے پاس ایک بہت پڑھا لکھا آدمی آیا، عہدہ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اس کے ساتھ واقعات ہوئے۔ 100 کا نوٹ چپس کے پیکٹ سے نکلتا تھا، گھر سے پیسے چوری ہو جاتے تھے اور وہ پیسے بچے جا کے چپس لاتے تھے، جب چپس کا پیکٹ کھولتے تھے اس کے اندر سے وہ نوٹ نکلتا تھا، کہیں نوٹ پڑا ہوا ہوتا تھا، کہیں پیسے کہیں سے مل جاتے تھے۔ انوکھے واقعات، انوکھے مشاہدات، انوکھی چیزیں، بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا، میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا، یہ چیزیں صرف ایسی دھوکہ ہیں، فریب ہیں، یہ پیروں کی اور ان کی بناوٹی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خود واقعہ میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب میں حیران ہوں کہ اس چپس کے پیکٹ سے 100 روپے کا نوٹ کہاں سے نکل آیا، کہاں سے نکل آیا؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس نے جا کے اس کا دماغ گھمایا، وہ کلام الہی، ذکر الہی کی طرف پھر متوجہ ہوا وہ شخص۔ جنات کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، شیاطین کا، جسے جنات بھی کہتے ہیں شیطان بھی کہتے ہیں، ان کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ہمیں سکھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں سکھی دیکھ پائیں گے، خوشحال نہیں دیکھ پائیں گے، مسرور اور صحت مند نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان کی کاوش اور کوشش ہوگی پریشان ہوں، دکھوں پریشانیوں تکلیفوں مشکلوں مسائل الجھنوں میں ہماری زندگی کے دن رات گزرے، ہر وقت ان کا ذہن اسی میں الجھا رہے گا اور وہ ہمیں ڈستے رہیں گے مختلف طریقوں سے، جناتی چیزیں،
शैतानी चीजें, पता ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये जिन्नाती और शैतानी चीजें खुद नुकसान करके जो अंदर ख्याल लाएंगी, वो लाएंगी कि तेरी बीवी ने किया, तेरे शौहर ने किया, तेरी भाभी ने किया, तेरी सास ने किया, तेरे करीबी रिश्तेदारों ने किया, ये किया है। रिश्तों और सिला रहमियों को खत्म कराएंगे। शैतान का जो वार है, मेरी बात गौर से समझिएगा, बंदे को तबाह करने के लिए जो सबसे बड़ा वार है वो सिला रहमी को खत्म करता है। सिला रहमी का उसे पता है सिला रहमी से उम्र बढ़ेगी, एक वादा। उसे पता है सिला रहमी से उम्र बढ़ेगी, एक वादा। उसे पता है सिला रहमी से रिस्क बढ़ेगा, दूसरा वादा। उसे पता है सिला रहमी से उम्र बढ़ेगी, तीसरा वादा। उसे पता है सिला रहमी से आसमानी जमीनी आफात से महफूज रहेगा, अगला वादा। शैतान को पता है। अब वो बदगुमानी और शक डालेगा। मेरे पास कई डसे हुए केस आते हैं, फला ने कहा था, उसके पास तावीज लेने गए थे, उसने कहा तेरी भावज ने, नंद ने और तेरी फला रिश्तेदार और फला रिश्तेदार उसने किया है, हालांकि कुछ नहीं। अच्छा, लफ्जों की कमी बेशी, गुस्सा, हसद, जलन, ये एक फितरी चीज है, ये होती रहती है। लेकिन ये क्या हर बंदा इसी काम पे बैठा है, जादू में बैठा है? जिन्नात इनको जो चीज खत्म करेगी ना, वो आखिरी 6 सूरतें होंगी। देखिए, एक है अमल नमाज के बाहर, एक है अमल नमाज के अंदर। जो नमाज के बाहर अमल है उसकी ताकत और है, और जो नमाज के अंदर अमल है उसकी ताकत और है। नमाज के जो अंदर अमल है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। सूरत अलम नशरा, सूरत अलम तरा कैफा, इसको जिंदगी में कभी न छोड़ें। अपनी सुन्नतों में, अपनी अकेली नमाजों में, अपनी तन्हा नमाजों में न छोड़ें। जो चाहता है कि आज के दौर में, जब हदीस के अल्फाज सुनाता हूं, फरमाया साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा। ये आग जलती है, छोटी सी चिंगारी यूं ऊपर उठती है और बुझ जाती है। आग जलती है, छोटी सी चिंगारी ऐसे उठती है ऊपर और ऊपर जाके बुझ जाती है। और मैं दिन ऐसे गुजरेगा। उन औकात में अगर बरकत चाहते हैं, जब बरकत गंदम से, रिस्क से, सेहत से, दिन से, उम्र से, सालों से, महीनों से, चीजों से खत्म हो जाएगी। एक अल्लाह वाले थे, बासी रोटी 2 दिरहम की देते थे, ताजा रोटी 1 दिरहम की देते थे। लोग हैरान थे, और मैं हजरत बासी रोटी 2 दिरहम की, और मैं इसको बरकत वाला वक्त हासिल है। हर आने वाला वक्त बरकत को खत्म कर रहा है, हर आने वाला वक्त बरकत को खत्म कर रहा है, हर आने वाला वक्त। जब यह दिन हो कि साल महीनों के बराबर हो जाएं, और महीने हफ्तों के बराबर हो जाएं, और हफ्ता दिन के बराबर हो जाए, और दिन शरारे और चिंगारी के बराबर हो जाए, ऐसे औकात में अपनी नमाज में अलम नशरा, अलम तरा कैफा पढ़ें। काम सिमटेंगे, काम बनेंगे। थोड़े वक्त में जल्दी अल्लाह गैबी निजाम चलाएगा। थोड़े वक्त में अल्लाह बरकतों रहमतों के दरवाजे खोलेंगे। बड़ी बड़ी बीमारियों के हमले, बड़े बड़े ताकतवर हमलों से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, और अल्लाह गैब से अनोखा निजाम चलाएगा। अल्लाह गैब से अनोखा निजाम चलाएगा। नमाज के बाहर मामूलात कर रहे हैं आप, नमाज के अंदर क्या पढ़ना है? जैसे आज हमारी 12 रकत हैं, 2-2 रकत करके हमने, पहली रकत में, दूसरी रकत में हमने सूरत इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाह पढ़नी है। 2-2 रकत करके 12 रकत पढ़नी है ना, तो 6 दुगाने हुए। तो उसमें पहली रकत में फातिहा के बाद सूरत कुल हुवल्लाह, हमने ये 12 रकतें सूरत कुल हुवल्लाह के साथ पढ़नी है। ये तो साल में 1 दफा पढ़ते हैं, 11 और 12 के दरमियानी रात में। आज बुध है, आज वही आज की रात 11 और 12 के दरमियान। मेरी आपसे दरखास्त है, अमूमी आप क्या पढ़ेंगे? यह तो आज की तरकीब है, अमूमी क्या पढ़ेंगे? 6 सूरतों को मामूलात में रखें, 6 सूरतें अलम नशरा अलम तरा कैफा अपनी मामूलात में रखें। नमाज के अंदर भी सोचें। और तीसरी चीज जो नमाज के अंदर पढ़नी है वो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, इनको ना कभी भूलिएगा।
सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ये उसका सिला है। मैंने हुजूर के रोज़े अतर पे गया, ये कई सालों से मेरे पास पड़ी थी और मेरे अंदर एक चुभन थी, आज पूरी करता हूं मैं। हुजूर के रोज़े पे गया, हुजूर के रोज़े पे सलाम, सलात, दरूद और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, मैंने बहुत पढ़ता हूं, चंद बार गया हूं, बहुत पढ़ी। और मैंने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है कि मदीना में रिजालुल गैब होते हैं और मदीना में होते हैं ऐसे तेरे बंदे, अल्लाह के बंदे रिजालुल गैब। मेरे साथ मुल्तान के एक साहब थे, बहुत ज्यादा उनके पास इल्म और नॉलेज था। रिजालुल गैब का तज़किरा होता तो उनको इस पे शरह सादर नहीं था। वो इस मामले में कहते थे बस ऐसे ही है, ये बातें हैं, इस तरह है, इस तरह है। मैं उनसे ज्यादा नहीं टकराता था, मेरे मिजाज में टकराना, बहस करना नहीं है। मैं हुजूर के रोजे के करीब जितना भी है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ता था और हदिया करता था और अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, कोई रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाए, रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाए। ज़ोहर के वक्त मैंने दावत की थी हजरल मौत की। हजरल मौत यमन में एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, और यमनियों का एक मतबख है, होटल कहूं, एक खास कीमती खाना है, अरब का मतबख है उसका, हजरल मौत, सैयदना अमीर हमजा रोड पे मदीना मुनव्वरा में। मैंने वहां दावत की थी। एक जगह हम जमा थे हुजूर के रोजे के सामने के जोहर में हमने यहां जमा होना है और सामने गली में से जाना है। हम दोनों बैठे थे, वो मैं और वो मुल्तान के साहब, जो अक्सर इन बातों को कहते थे कि ये बस ऐसे ही है। हम बैठे थे और मैं दिल में अल्लाह से अर्ज कर रहा था और लक़द जाअकुम रसूलुन मुसलसल पढ़ रहा था और पता नहीं मैंने कितनी पढ़ी हो गई, कई दिन से वहां मदीना मुनव्वरा में कयाम था। एक साहब आए अफ्रीका, हबशा के, बिलाली अफ्रीकी आए, आके बैठ गए। यह तस्वीर उनके हाथ में थी, ऐसे पढ़ रहे हैं और मैंने उनके मुंह से जो सुना, अनफुसकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, यह लफ्ज़ मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा ये भी यही पढ़ रहे हैं, और मुझे हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके कहा निस्बत मुस्तफा मुझे यह दे दिया, ले ली। और उनको फिर अरबी जबान में कहने लगे, उनको वो अरबी समझते थे और बोलते भी थे, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं। उनको कहने लगे अल्लाह का हबीब भी है, नबी भी है, और अल्लाह के नबी के गुलाम भी हैं जो रिजालुल गैब होते हैं, इनका इनकार अच्छी बात नहीं है। ये बात कही और उठ खड़े हुए। रश कुछ नहीं था, देखा तो नहीं है। मैंने बोला कहां है? कह रहे कहां है? रश नहीं था, हम तो बैठे अपने दोस्तों का इंतजार। अल्लाह के नबी भी हैं, क्या लफ्ज कहा? और रिजालुल गैब भी हैं, और आगे क्या कहा? उनका इनकार अच्छी बात नहीं। मैं उनकी जो अरबी जबान के अल्फाज थे उसका मैंने मफहूम अर्ज कर दिया। अल्लाह लफ्जों की कमी-बेशी माफ करे। अल्लाह के नबी भी हैं और रिजालुल गैब भी हैं, उनका इनकार अच्छा नहीं है। मालूम हुआ वो रिजाल थे, वो अबदाल मदीना थे, वो तस्बीह दे गए। और यकीन जानिए ये तस्बीह लकड़ी की बनी हुई है। ये तस्बीह जिस दिन से ये तस्बीह मेरे पास आई है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नहीं कहता मैं वली बन गया हूं या मैं खुद रिजालुल गैब बन गया हूं, तो दावा नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इस तस्बीह की बरकत का ताल्लुक मेरी जात से नहीं, ना मेरा कोई कमाल है। या लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा, यह आयत है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। मैंने कहा कहां है? कहने लगे थे कोई रिजालुल गैब,
اور مجھے سمجھانے آئے تھے، اور یہ تسبیح آپ کو دی ہے حضور کی نسبت سے ہیں۔ پہلے لگتا ہے کہ ایسے ہے جیسے حضور نے بھیجی ہے، مجھے کہنا کہ اس تسبیح کا حصہ، میں نے کہا حصہ تو اسے ملے جو مانے، حصہ تو اس سے ملے جو مانے، کہہ رہے آدھا آدھا کر لیں، میں کہا جو مانے تو اس سے ملے، آپ کو دی ہوتی تو آپ لیتے، انہوں نے دی مجھے ہے، حضور کے روزے کی طرف اشارہ کرتے۔ اپنی نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے، اپنی نفلوں کے اندر، اپنی رکعتوں کے اندر، اپنے فرائض کے اندر، اپنے واجبات کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ باہر تو ہم اعمال کرتے رہتے ہیں، اندر کیا پڑھنا ہے؟ اندر کیا پڑھنا ہے؟ دیکھو ایک بات بتاؤں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یہ جمع ہوتی جاتی ہیں۔ میں باغ میں جا رہا تھا، والد صاحب رحمت، ہمارے بڑے باغ کے ساتھ نا نہر بہتی ہے، باغ کے ساتھ نہر بہتی، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آگے پل تھی، پل کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی تھی اٹکی ہوئی تھی، اس کو جھک کے نکال لیا۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی یہ چھوٹی سی لکڑی تھی، فرمانے لگے یہ چھوٹی سی لکڑی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور لکڑی ہے، پھر ایک اور آ کے لکڑی ہے، پھر یہ اٹکتے 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 آخر پل بند ہو جاتی ہے، پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے نہر کو ٹوٹنے سے بچایا۔ چھوٹی سی لکڑی نہر کو توڑ دیتی ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرے زندگی میں جمع ہوتے 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 ایک وقت آتے ہیں برکتوں کے دروازے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کے جمع ہوتے 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 ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے جمع ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جمع ہوتے ہیں اور زندگی میں رنگ گھول دیتے ہیں اور زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اپنی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، رکعتوں کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ آپ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، صرف قل ہو اللہ نہیں، باقی قرآن بھی تو ہے۔ حافظ اگر حافظ ہیں تو وہ بڑی صورتیں پڑھیں اپنی انفرادی رکعت میں، اگر جماعت کرا رہے ہیں پھر نہیں، پھر احتیاط ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ ہر فارم ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، ہر فارم کے اندر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر خانہ میں ایک ہی چیز لکھی جاتی ہے؟ فائل کے اندر کیا لکھا جاتا ہے، فائل کے باہر کیا لکھا جاتا ہے؟ زندگی کے یہ طریقے تو ہے، تو نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کے باہر کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ خط کے لفافے کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے اور خط کے لفافے کے باہر کیا لکھا جاتا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرتے جائیں، نسلیں آباد اور شاد ہوں گے، نسلیں خوشحال ہوں گے۔ میں بعض اوقات نا بیٹھ کے ایسے آنسو آ جاتے ہیں، پھر پردادا کو سوچتا ہوں، 1919 میں انہوں نے حج کیا تھا اور میرا آخری حج 1919 میں ہوا، اس کے بعد پھر حالات آئے حج کا نظام۔ میں سوچتا ہوں انہوں نے کیا دعائیں کی ہوں، اور اپنی دعائیں انہوں نے لکھی ہیں کچھ یادداشتوں میں، اپنی ڈائریوں میں لکھی ہیں۔ میرے پردادا نے 1919 میں، دادا نے 1936 میں حج کیا۔ سوچتا ہوں کیا حج، کیا ترتیب۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، 3 ذی الحجہ کو فوت ہو گئے، 3 ذی الحجہ کو حج نہ کر سکے، سارا نظام بنا ہوا تھا، میں خدمت میں ساتھ جا رہا تھا، 3 ذی الحجہ کو فوت ہو گئے۔ ان کے حج بدل کرائے خود کیے۔ کیا دعائیں ہوں گی ان کی کیا اللہ کے ہاں فریادیں ہوں گی۔ آج ان فریادوں کی برکات ہیں، ایک دنیا ہے سیراب ہو رہی ہے، ایک مجمع ہے سیراب ہو رہا ہے، تو اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ آج بھی آپ بھی کچھ کر جائیں، آپ بھی کچھ کر جائیں۔ نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے، نمازوں کے باہر کیا پڑھنا ہے، زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، زندگی کے باہر کیا کرنا ہے، آپ بھی کچھ کر جائیں۔ نسلیں آئیں گی، نسلیں خوشحال ہوں گی،
दुआएं देंगी, दुआएं देंगी और नस्लें कहेंगी कि आपकी मेहरबानी, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मेहरबानी आपने हमारे लिए खुशहाली के दरवाजे खोले, राहतों के दरवाजे खोले, बरकतों के दरवाजे खोले, आप हमारे लिए बहुत कुछ खुलवा के चले गए, बहुत कुछ खुलवा के चले गए। मैं चौक में जा रहा था तो गाड़ी देखी, तो गाड़ी का शीशा खोला, किसी ने मुझे आवाज दी, देखा तो उच्च शरीफ के बड़े मखदूम थे, वो बड़ी गाड़ी में बैठे थे। मैं मिला और बेटों ने घुटनों पे हाथ रखा, मैंने उनसे कहा, घुटनों में हाथ रखा, उन्होंने गाड़ी में कैमरा लगाया हुआ था, मेरा वो क्लिप उन्होंने निकाला और एक दोस्त को भेजा, कहने लगे आप फलां चौक में फलां मखदूम साहब को मिले थे और झुक के मिले थे और आपके बेटों ने घुटनों पे हाथ रखा था। मैंने कहा सच है, क्यों? उनके बड़े पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आल में से हैं, औलिया और नस्लों में से हैं, मैं उनको नहीं, उनकी नस्लों को झुक के आइंदा भी मिलूंगा, आइंदा भी मिलूंगा। आले रसूल आले बतूल हैं, निस्बत आले रसूल है, निस्बत औलिया है उनके साथ, मैं आइंदा भी झुक के मिलूंगा। अल्लाह पाक ऐसे बंदों को झुकाएगा, ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे तमंगरी के दरवाजे खोलेगा, ऐसे बरकतों के दरवाजे खोलेगा। नमाज के अंदर क्या पढ़ना है, नमाज के बाहर क्या पढ़ना है, जिंदगी में हलाल हराम की कहां पहचान करनी है, जायज नाजायज की कहां पहचान करनी है। छोटे छोटे राज हैं, छोटे छोटे मोती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी में समेटते जाएं, पिरोते जाएं, बनाते जाएं, जिंदगी लाजवाब हो जाएगी और जिंदगी बेमिसाल हो जाएगी। लोग रश करेंगे, फिर अल्लाह आपको इतना देगा, लोग दूरबीनें लगाएंगे, माल कहां से आ रहा, चीजें कहां से आ रही, उन्हें पता नहीं है। रिस्क का जर्रा मिला हुआ है और बरकत का जर्रा मिला हुआ है, और वो बरकत का जर्रा जिसको मिल जाए, बस बरकत का जर्रा मिला हुआ है। इन छोटी चीजों को कभी छोटा ना समझिएगा, इन छोटी चीजों को कभी छोटा ना समझिएगा। उस दिन मेरे ड्राइवर ने कहा, मैंने कहा गाड़ी की हवाएं ठीक है? कहे हाँ ठीक है। मैंने जाकर कहा इसको चेक करो भाई। उसने कहा आगे जो है वो 30 पाउंड है और पीछे जो है पिछले टायरों में हवाएं ज्यादा हैं। फौरन कहने लगा गर्मी है। उन्होंने कहा आगे सर्दी है पीछे गर्मी है। गर्मी होनी थी तो सारे हवाओं में टायरें पड़नी थी। हवाओं में पाउंड थोड़ी बड़ी ज्यादा हो जाए तो गाड़ी का अंदाज बदल जाता है। ऐसे जिंदगी में अगर अब जिक्र, तस्बीहात, अमाल और बरकत इनके पाउंड भी बढ़ जाएं, कम हो जाएं, तो भी जिंदगी के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। जिंदगी में रंग भर दें और तस्बीह खाने से लेके जाएं और तस्बीह खाने में इसकी मश्क करें, मुसलसल मश्क करें। एक है रात को भी फिक्रमंदी के सोना है, फजर के बाद भी फिक्रमंदी के सोना है, जोहर के बाद फिक्रमंदी के सोना है, असर के बाद फिक्रमंदी के खाना है। इसी फिक्र में सारा दिन गुजर गया, कोई जिंदगी का मजा तो ना आया। इसी फिक्र में सारा दिन गुजर गया, जिंदगी का मजा तो ना आया। तो घर बेहतर थे, उससे बेहतर से घर था। आप घरों के शहजादे हैं, हर बंदे घर का अपने मिजाज है, अपनी तबीयत है। घर वालों को पता है कि ये इस वक्त सोता है, इस वक्त खाता है, ये जिंदगी है। तो उससे बेहतर घर बेहतर था। घर छोड़ा, सब छोड़ा और अपनी तबीयत को ना छोड़ा यहां आके भी, और अपने मिजाज को ना तोड़ा यहां आके। जमीन बदली जमा बदले, मक्की बदला मकान बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। इंशाल्लाह फैसला करें, कर लिया। और सूरत इखलास सोते हुए 3 दफा दाएं करवट पे, 3 दफा बाएं करवट पे मामूल बना ले। ये सबक रोज याद कराया जाता है, रोज याद कराया जाता है। और 3 दफा जो है सीधा आसमान की तरफ। ये बरकतों के दरवाजे, हिफाजतों का निजाम और फरिश्तों की पूरी फौज है जो रब के रहमत से इसकी हिफाजत करती है।